Three things that must happen now. The violence in Madhya Pradesh must stop immediately. Those who are responsible for firing at farmers and killing them must be brought to book, and those netas who fueled the violence must also be brought to book. Congress netas who have emerged in videos that pose uncomfortable questions for the party. Did they ensure that Madhya Pradesh already... The death toll in the Madhya Pradesh violence today rose to 6. One person who had been injured succumbed to his injuries. We know now that it was police firing which led to these deaths. That's one question that has been answered. But the question that had not been answered so far, who was responsible for the violence before and after firing by the police? Now some videos have emerged featuring politicians, including 2 MLAs of the Congress, which might just provide us the answer to that question. पथराव करवा रहे हैं आप। एक गरीब फल वाले का फल लूट लिया उन्होंने। कितने लूट लिया? This is damning proof of inciting violence. 3 Congress leaders caught on camera trying to instigate violence in volatile areas of Madhya Pradesh. Take a look at this Congress leader from Ratlam, brazenly asking for his supporters to burn police vehicles. ये दम रखना कि अगर एक भी गाड़ी आ जाए तो आग लगा दो, जो होगा जो देखना। कोई भी किंतु परंतु थाना पुलिस कोई डरने की जरूरत नहीं। और कल तक मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी तो आप सब लोगों की जवाबदारी है। तो आप सब लोग ये किंतु परंतु वाले शब्द निकाल दो। An FIR has been filed against him, but he is still roaming free. Now listen to another Congress leader, Shakuntala Khatik, MLA from Shivpuri, who eggs on supporters to set a police station on fire, even as the cops try to reason with her. Provocations come from another Congress leader, Jeetu Patwari. Listen to him taking on an on-duty cop and then defending himself. आपने गारंटी ली थी। आप अभी ये पुलिस को संभालो। मैं तो संभाल रहा हूँ, मेरा काम है वो, आप मत चिंता कीजिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं। विधायक जी, आपने गलत किया। आपका काम करो। Incidentally, Patwari is the same person who gave a pillion ride to Congress Vice President Rahul Gandhi on Thursday, who was en route to meet farmers in Mandsaur. What happened in Mandsaur has got a severe spillover effect, with farmers protesting in different parts of the state and the country. Listen into these Congress leaders' brazen provocations again. आपने शांति का बोला था, मेरे को गारंटी दी थी, गारंटी है, कुछ नहीं होगा। पूरे शहर में हुड़दंगी हुई, गुंडागर्दी की गई है, लोगों को परेशान किया गया, बहुत गलत है। आप रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीजिए आपने गारंटी ली थी। आप अभी ये पुलिस को संभालो। मैं तो संभाल रहा हूँ, मेरा काम है वो, आप मत चिंता कीजिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं। विधायक जी, आपने गलत किया। आपका काम करो। मैं करूँगा अपना काम। भैया मैंने कुछ किया ही नहीं तो सीरियसली क्या लेंगे। मैंने तो किसानों की मांग के साथ पहले दिन से थूमा और आखिरी सांस तक रहूंगा। रही बात उकसाने की, ये बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा है। इस तरह की बात करके अपने धर्म से वो शिवराज सिंह बच नहीं सकते हैं। उन्होंने गोलियां चलाई है लोगों पे, लोग सड़क पे आए, इतनी ताकत से आए, कितना अंदर से गुस्सा होगा। Yes, the police opened fire and killed farmers, and the state government must answer for that. But the Congress must also answer for the wanton violence in the state. Did they actively aid and abet the unrest to ensure that Madhya Pradesh went over the edge? With Vijay Kumar Meena in Ratlam, Preeti Chaudhary and Himendra Sharma, Bureau Report, India Today. All right, joining us now in the People's Court is Pawan Khera. He's the spokesperson of the Congress. We've got Syed Zafar Islam of the BJP. And with us in the studio is the one of the Congress MLAs who is squarely today in the People's Court, Jeetu Patwari. We'd also like to break news to you that now 18 cases has been registered against leaders of the Congress, including on you,
मिस्टर पटवारी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि आपने हिंसा भड़काई। मैंने जैसा कहा कि सरकार के पास ये तो आपने बताया मुझे सबसे पहले कि मैंने हिंसा भड़काई से मेरे पे केस है, पर उसका क्या एविडेंस क्या है? क्या किस सरकार के पास ये हथियार तो होता है कि वो किसी पे भी किसी भी एफआईआर कर सकती है, पर उसको प्रूव करने के लिए उसके आगे की कोर्ट भी है। मैंने जैसा कहा मैं नहीं, पिछले कोर्ट तो है, पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं अभी उस एक वीडियो का। उस वीडियो पे जहां पर एसडीएम आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने पथराव किया है, लोगों के आपने फल लूट लिए, नहीं, आपने गारंटी ली थी कि हिंसा नहीं होगी। पद्मजा, उन्होंने ये नहीं कहा आपका वीडियो है, उन्होंने घर लूट लिए ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा आपने गारंटी ली थी। ये सच है। नहीं, पत्थरबाजी हुई है, आपने गारंटी ली थी कि कोई पथराव नहीं होगा, पथराव हुआ है। ठीक है, सुन लेते हैं, पहले दर्शकों सुन लेते हैं आपने क्या बोला था और क्या झगड़ा हुआ था। कैन वी जस्ट प्ले आउट व्हाट वाज दैट एंटायर कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर पटवारी एंड द एसडीएम एट दैट पॉइंट। आपने शांति का बोला था, मेरे को गारंटी दी थी, गारंटी है, कुछ नहीं होगा। पूरे शहर में हुड़दंगी हुई, गुंडागर्दी की गई है, लोगों को परेशान किया गया, बहुत गलत है। आप रिस्पॉन्सिबल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपने गारंटी ली थी। आप अभी ये पुलिस को संभालो। मैं तो संभाल रहा हूँ, मेरा काम है वो, आप मत चिंता कीजिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल तो मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं। विधायक जी, आपने गलत किया, आपका काम करो, मैं करूंगा अपना काम, और आप भी अपना काम कीजिए। जिनको भड़काया आपने, प्लीज आप उनको लेके जाइए अंदर। ये शहर में आपने लगाओ मत। जस्ट स्टॉप दिस। जिनको भड़काया है आपने, उनको लेकर के जाइए। बिल्कुल राइट। अब यहाँ से चालू करते हैं। पहले घटना को समझने की आवश्यकता है। जो वीडियो आपने कहा ये इंदौर का है। इंदौर में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई कि इस तरह की ये बातें हो। अरे पटवारी जी, वहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई थी। वहां पर जितनी लोकल रिपोर्ट्स है, आपको खुद ही मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मंदसौर नहीं, इंदौर की है, ये बात हमें भी पता है। मंगलवार को एक बार फिर मंडी बंद करवाने पहुंचे उपद्रवियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प और पथराव हुआ। प्रशासन की सख्ती के चलते जब वो मंडी बंद नहीं करवा पाए तो उन्होंने पुलिस पर जमकर पथराव किया। जो आप पीस मार्च की बात कर रहे हैं पटवारी जी, ये था वो पीस मार्च। नहीं, आपको फिर गलत फहमी। आप जिस तरीके तारीख की बात, आइए कितनी तारीख की बात है? ये है तारीख जून 7 की रिपोर्ट है ये जून तो 7 यानी कि ये 6 जून की घटना है। 6 जून के दिन मंदसौर में 6 लोगों को गोलीबारी हो गई थी। ये उस दिन सुबह की 10 बजे की बात है। हाँ। उस दिन 10 बजे प्रोटेस्ट यहाँ से 10 किलोमीटर जो एजिटेशन हुआ कलेक्टर ऑफिस पे हुआ। हाँ। कलेक्टर ऑफिस इस जगह से मंडी, जहाँ पे आपने बोला पूरी बात, मंडी को बंद करवाने की कोशिश की कि नहीं की? अगर मैं मंडी के अंदर एक पैर भी गया, कोई एक 5 व्यक्ति भी गए हो, 10 व्यक्ति भी गए हो, ये जो कार्यक्रम है ये रोड पे था, मंडी के चौराहे पे था। सारी वीडियोस, सारी रिपोर्ट जो उस दिन फाइल हुई है सब झूठ है। आप वहां पर शांति यात्रा निकालने गए थे। इस तरीके से आप जबरदस्ती अगर मेरे मुंह में आपके शब्द डालने की कोशिश मैं आपसे सवाल पूछ रही मैं हूं, उत्तर दे रहा हूँ तो पूरा उत्तर में आप सुने। मैंने ये कहा कि मंडी चौराहे पे था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। मैं वहीं से विधायक हूँ और बड़े वोट से जीत के आया हूँ। उन लोगों ने जिताया है जो लोग वहां पे रहते हैं। आप मेरी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपके और आपके समर्थकों ने पथराव किया कि नहीं किया? मैं नहीं किया। बिल्कुल। एसडीएम ने जो बोला कि वहां पर आपने गारंटी ली थी शांति होगी और उसके बाद पथराव हुआ, एसडीएम झूठ बोल रहा है। ये एसडीएम ने, यही मैं बात पूरी करूं तो आप पूरी सुनो तो मैं पूरी बात बताऊं। एसडीएम ने, पुलिस ने जो 50-100 मोटरसाइकिलें थी उनको एकाएक फोड़ना चालू कर दी। कब फोड़ना चालू करी? जब कार्यक्रम था 10 बजे और ये घटना है 1 बजे की। 10 बजे कार्यक्रम हो गया। 10 बजे आप सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। आप सिचुएशन को समझेंगे तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सैयद जफर इस्लाम, I want to come in now. The video is doctored. The SDM is lying. There was no patharbazi. The FIR you have registered is based on no evidence. सेकेंड, मेरी पूरी बात पद्मजा, उनकी बात भी सुन लीजिए ना। सैयद जफर इस्लाम। Padmaja, I think Mr. Jeetu Patwari, his other Congress colleague from Congress, 18 of them have been booked. And why they have been booked? Everyone's video is available. Everyone can see their own video, how they were inciting the violence and how they can get away without being charged by the police officers. They have done such a serious crime. They are responsible for all the deaths. Farmers, 5 farmers have lost their life, and nobody else responsible except the Congress leaders
and the goons supported by Congress leaders. Jitu Patwari, I will name them. Jitu Patwari, there's lady, Congress MLA, Shakuntala. See what she was saying, that set on fire this police station. What kind of a statement? The other colleague of Jitu Patwari's colleague from Congress. सैयद जफर इस्लाम, जस्ट आंसर द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू. आपके पास क्या सबूत है जिसके बेसिस पर आपने इनके ऊपर एफआईआर किया है? ये कह रहे हैं कि एसडीएम झूठ बोल रहा है, कोई पथराव हुआ ही नहीं. अब आपने इनके ऊपर उठा के केस दर्ज कर दिया है. देखिए, जो भी केस हुआ है, पुलिस के पास सारे एविडेंस है. एविडेंस कोर्ट में पेश की जाएगी और जीतू पटवारी जैसे लोग जो कि इन वायलेंस को इंसाइट करते हैं, गरीबों की हत्या करवाने में रिस्पॉन्सिबल हैं. जफर इस्लाम, आपकी आपत्ति है मेरे आपके शब्दों पे? आप जिस तरीके से बात, आपकी सरकार ने 6 लोगों को किल्स कर दिया, मार डाला, और आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं. आपके शिवराज सिंह जी की सरकार ने 6 लोगों की हत्या कर दी, खड़े खड़े गोलियां मार दी, और आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं. आप पूरे शहर, पूरे देश में जिस तरीके से आप बदनाम हुए, आपने जो काम कहा वो किया नहीं, और वायलेंस हो रहा है, उसके जिम्मेवार आप हैं, और आप उस पर बदनामी का ठिकरा कैसे बात कर रहे हैं आप? एक एसडीएम अगर मुझे ये कहेगा कि पटवारी जी आपने गारंटी ली थी कि कुछ होना नहीं चाहिए, और अगर कुछ हो गया, ये एक क्लिप है आपके पास, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कहां पत्थर चले, कहां क्या हुआ, क्या मेरे फोटो वीडियोस है, क्या मेरे साथ कुछ हुआ? कुछ भी जबरदस्ती टेलीविजन को अवेलेबल करा के जिस तरीके की घृणित चाल चलना आप चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि क्यों लोग लड़ रहे हैं. उन पर बात करने के बजाय आप इस तरह के डिबेट पे बात करना चाहते हो. सवाल इस वक्त सवाल ये नहीं है कि क्यों हो रहा है झगड़ा. सवाल ये है जफर इस्लाम कि क्या आपने लोगों से वादे किए थे और पूरे नहीं किए, और क्यों लोग सड़क पे आए? सवाल ये है जफर इस्लाम, सवाल ये है कि आपने 6 लोगों की हत्या करवा दी खड़े खड़े, इसका जिम्मेवार कौन है? सवाल ये है कि गृह मंत्री एक दिन कहता है कि पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई, और दूसरे दिन बीजेपी का अध्यक्ष कहता है पुलिस ने गोली चलाई, और तीसरे दिन मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ये पुलिस ने गोली नहीं चलाई, और चौथे दिन फिर एक्सेप्ट करते हैं कि पुलिस ने गोली चलाई. इस तरह की सर्कस जैसे सरकार चला रहे हो, और विवाद टीवी पे कर रहे हो, टेलीविजन पे कर रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो. पुलिस को आप जिस तरीके से, और मैंने अगर मेरे जैसे किन लोगों ने इस तरह के वायलेंस में हिस्सेदारी की, तो आप सर्कस चला रहे थे पहले, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्या कारण था? आपने जेल की सलाखों में होने चाहिए ऐसे लोग, क्यों नहीं? अगर आपको हिम्मत है तो आप वीडियो, मैं पूरे दिन वहाँ आपके साथ रहता हूँ, प्रदेश की सरकार के साथ रहता हूँ, आईजीडीआई की सबसे बात होती है. अगर मैं गलत था तो मुझे अरेस्ट करना था, क्यों नहीं किया? ओके, आंसर दैट. जफर इस्लाम, बिफोर थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड, आपने जीतू पटवारी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर आपको लग रहा था कि ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, आगजनी करवा रहे थे, क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया उस वक्त? देखिए, आपने सुना पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा इनसे कहा कि ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए हैं, इनका दायित्व बनता है कि वहां पर अगर कोई ऐसी हिंसा हो रही है या कोई भीड़ जमा है तो इनका काम है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए लोकल. राइट जफर इस्लाम, आप सही हो. यहीं से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ. जफर 1 मिनट आराम से सुनो. जफर 1 मिनट आराम से सुनो. और इन्होंने वही उल्टा काम किया जिसके लिए पुलिस ने पहले पूछा था क्या आप भड़काने वाले हैं या आप लोगों को काम करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया, उत्तेजित करने का काम किया, और वायलेंस क्रिएट कर. इस तरह के गलत, अगर आपने डिबेट किया आप पे कोर्ट केस कर दूंगा जफर इस्लाम. ध्यान रखना, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि घर में बैठूं. मैं अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए, गरीबों के लिए पॉलिटिक्स करता हूँ. मेरी हॉबी है, मेरा शौक है. कि आपने गलत काम किया है. नो, आप गलत हो जफर इस्लाम. आपकी बीजेपी निष्क्रिय रही, मुख्यमंत्री अक्षम रहे, लोगों को मरवा दिया, कई करोड़ों की संपत्ति फुकवा दी. आप सरकार चलाने में सक्षम नहीं थे. आप उस तरीके से दूसरों पे दोषारोपण करके अपने आप को बचा नहीं सकते. आपके कुकर्मों का, आपके पाप के भागीदारी आप दूसरे को नहीं बना सकते जफर इस्लाम. आपको आपकी सजा मिलेगी. और एक बात ध्यान रखो, ये पाक महीना है जिसमें रोजे पे जाते हो, झूठ बोल के अगर कोई बात कहोगे तो इस संसार में तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ऊपर भी देना पड़ेगा. देख लीजिए, मुझे पाठ मत पढ़ाइए, वीडियो खुद देख लीजिए. उस वीडियो में क्या है जफर इस्लाम? वीडियो में है कि पटवारी जी आपने रिस्पांसिबिलिटी ली थी कि किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं होगा. ये कह रहा है, कहां पे वायलेंस हुआ ये बता. लोकप्रियता खत्म हो गई. आप इस तरह से लोगों के लाशों पर आपके पास कोई वीडियो है ऐसे जिसमें वायलेंस दिख रहा हो? हमारे पास ऐसे वीडियो है जिसमें पुलिस प्रशासन लोगों की गाड़ियां तोड़ रही है, नंगे पुलिस प्रशासन लोगों को मार रहा है, एक बच्चे को पकड़ के मार रहा है. वो वीडियो हमारे पास है. आपके पास है? आपने देखा नहीं? आप पे पुलिस केस तो हो गई और आपको
जितने मासूम फार्मर्स मरे हैं करने से उनके लिए दे सकते हो जफर इस्लाम। इस देश में कानून है, मुझे पता है कि कहां पे किस जगह कौन सी बात करना चाहिए। मैं कानून भारतीय संविधान पे भरोसा करता हूं। अगर आपकी सरकार में आज सुबह फिर जा रहा हूं इंदौर, अगर आप में हिम्मत है इस बात की कि मेरे जैसे निर्दोष आदमी को गिरफ्तार करें तो आपका हक है, आपकी सरकार है, आप ऐसा कर सकते हैं। आप गरीबों को जब खड़े खड़े गोली मार सकते हैं तो गिरफ्तार और एफआईआर तो किसी पे भी कर सकते हैं। आप खड़े खड़े 6 लोगों को मार डाल। एक बात बताए जफर इस्लाम, आप एक बात बताए मुझे, एक उत्तर दे, मेरा उत्तर दे। आज न्यूज टुडे पे, इंडिया टुडे पे एक मेरा उत्तर दे आप जफर। नहीं, आप ये बताइए जीतू पटवारी जी, आप दलील दे रहे हैं यहाँ पर, आपसे जब सवाल कर रहा है एक पुलिस ऑफिसर जो कि आप पर भरोसा करके लोगों के पास भेजा, बीइंग ए लोकल रिप्रेजेंटेटिव, आपने उसका भरोसा तोड़ा और लोगों को उत्तेजित किया। ये आपने पथराव करवाया कि नहीं? ये ऐसा है जफर, ये बात एक पक्षी हुई। क्या ऐसी कोई एविडेंस जिसमें मैंने लोगों को कहा कि आप पत्थर मारो, चलो दौड़ो, चलो भागो, कोई ऐसी बात हुई हो तो मैं गुनहगार हूं? सारे वीडियो अरे जफर, आपको पता ही नहीं है कि जब घटना हुई थी मैं वहां उपस्थित था, तो मैंने पुलिस के साथ मिलकर जो छोटी मोटी बात, छोटी सी छुटपुट कि उनने गाड़ियां तोड़ी तो पुलिस को कहा कि मत करो, ये उत्तेजना होगी। 100 लोग थे, 20,000 लोगों का कार्यक्रम था। ये बताइए, एक सेकंड जीतू पटवारी जी, तो आप ये बताइए कि एसडीएम, आप ये कह रहे हैं किसी के इशारे पे काम कर रहा है कि आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहा है। उस वक्त जब चीजें हाथ के बाहर निकल रही थी, जब उसको और चीजें करने की जरूरत थी, वो आपके खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों करेगा? यही बात है। मैं जोशी जी, आप पद्मना, यही बताना चाह रहा था कि जब पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण निपट गया तो फिर शांतिपूर्ण तो नहीं निपटा ना। अरे पद्मजा, यही झगड़ा, ये एक ही शहर ऐसा है जहां पर कोई किसी प्रकार का वायलेंस नहीं हुआ। आसपास इंदौर के सब जगह बसें जली। आप पूरी बात सुने। 4 रिपोर्ट्स दिखा सकती हूँ उस दिन की, जहां पर लिखा गया है कि कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी की उपस्थिति में पत्थरबाजी हुई, पुलिस वहां पर पहुंची, फिर दोनों के बीच में झड़प हुई, एसडीएम पहुंचे, एसडीएम और विधायक के बीच में फिर झड़प हुई, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? यही पद्मना, आप बात करने दोगी तो बात करूंगा। एक सेकंड, आप इस तरीके से। I also want to get in Pawan Khera at this point. Pawan Khera, thank you very much for listening very patiently. I want to ask you about this pattern. On the last 2 days, we have been asking the government, and we'll continue to ask them, who opened fire? But who is responsible for the violence before and after? That also needs to be answered. 3 videos in a matter of 24 hours have emerged that needs these questions to be asked. You've got 2 MLAs. You've got one Jeetu Patwari, one Shakuntala Khatik, and one Zilla Parishad level worker of yours, all of them talking about violence. Should we not read a pattern there? Padmaja, the farmers' issues are not as old as the 1st of June. They'd been waiting for the Prime Minister to fulfill, to honor the promise that he'd made of doubling their income. The same government goes to the Supreme Court and says, sorry, we made a bold promise, but it's not possible, it's a stupid idea. Now let's also, we'll come to this aspect very soon. I've been very patient, so I hope you're also patient with me. I can understand the reason why the BJP is trying to shift the focus from the actual issue to who did what. We'll come to that. I'll tell you why they are doing this. Now these are farmers. The BJP definitely does not know how to handle this protest. They are not Muslims, they are not Dalits, they are not intellectuals, they are not seculars, they are not prostitutes. They can't be used to polarize the society. So BJP is finding it extremely difficult, and hence the insistence on blaming someone that it's, oh, if they're not, they don't fit into any of these categories. Mr. Pawan Khera, instigated by the Congress. Mr. Pawan Khera, may I request you to watch videos? Please, I didn't interrupt at all, Zafar. I request you to ask him to. I did not interrupt at all. If this is the way this debate will continue, then I will not let anyone have speak. That's my commitment. He's been waiting patiently. Let him have his say. Padmaja, I request you not to stop right here, otherwise I am not participating in this debate. Just a second. Sayyid Jafar Islam, I think you've had your say. He deserves his time. Go ahead. Padmaja, all I want humble request to Mr. Pawan Khera to watch those videos before making any
any comments. He is making allegation against BJP. He is making a statement against our party. But doesn't he see those videos where his own colleague is advocating violence? Okay. So okay. answer the question about these videos if he's advocating violence. The issue of violence, Mr. Kheda. I ask Zafar, I make you a humble request to go through your poll promises made in your manifesto, go through the videos of the Prime Minister's speeches in 2014. And then how much we are doing for the farmers. It is this party which is the only party who works for the welfare of the farmers. This is the way this debate will continue. I'm sorry, I'm not participating in any such debate where this man doesn't have the decency to allow me to speak. I will interrupt, and if this is the way he wants to continue, I will not let him speak a single word. That's my commitment. जफर इस्लाम जी, आपको इतनी तहजीब नहीं है, आपको तो सूट पहन के बैठ गए कि डिबेट की क्या एक थ्योरी होती है. This is the way it will continue. He has to keep quiet. He has to listen and then respond. I directly ask you question, Mr. Pawan Khera. मैं जीतू पटवारी को 10 साल से उसकी राजनीति देख रहा हूँ. वो हमसे आके लड़ने लग जाते हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए. आप इनको जानते नहीं है क्योंकि आपकी पार्टी में जीतू पटवारी जैसा एक आदमी नहीं मिल सकता. जीतू पटवारी किसानों के लिए कांग्रेस के नेतृत्व से संघर्ष करता रहा है. आप क्या जानते हैं जीतू पटवारी के बारे में? आपकी राजनीति में जीतू पटवारी जैसे लोगों की जगह ही नहीं हो सकती. मैं आपकी पार्टी की राजनीति और आपकी राजनीति अच्छी तरह जानता हूं. आप जीतू पटवारी जैसे लोगों को एक दिन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि गरीब की बात करता है, वो किसान की बात करता है. आप क्या भाषण दे रहे हैं गरीब और किसान पे? You could not honor one single promise of doubling their income. Instead, you cheated them when you went to the Supreme Court against them. No, but Mr. Khera, are you willing to go out on a limb? No, just a second. Mr. Khera, are you willing to go out on a limb? Because now here this gentleman you are defending has an FIR against him. In 60 years. And the Congress has no major presence in Tamil Nadu. Who will you blame in Tamil Nadu? DMK. You will keep blaming different parties, but you won't own up the responsibility of creating on this the mess. issue of farmers' promises will be questioned and they will have to answer. But Mr. Khera, my question to you over here is about the violence and the instigation that no, I'm not doubting camera. that about you, Padmaja. I need to question them. They are distracting the attention. They are diverting the attention on these videos. We won't let that happen. I have 6 videos. We won't let that happen. But Mr. Khera, their own equally, I want to ask burn the vehicles, to destroy property. You have in the People's Court today defended Jeetu Patwari and said that he is a man who's always fighting for farmers. Are you willing to go out on a limb and vouch for his innocence? Because now there is an FIR for instigating violence against him. Please investigate. Neither Jeetu Patwari nor any of his colleagues are scared of any investigation. You investigate. If you find anything wrong, please go and let the law follow its course, but don't divert the debate from the actual issues of the farmers. This is a very clever move by the BJP to ensure that we don't discuss the fundamental issue of farmers' plight, but keep focusing on what did Jeetu Patwari do, what did Shakuntala Khattik do, what did Dhakal but that do. is also an issue. Why do you want to avoid such discussion? Why do you want to avoid such discussion? Because you know that your colleagues are directly involved. You know that they are the one who are responsible for all the violence which had happened on that day. We have 10 videos of cops doing the same, but we are not talking about it. Mr. Pawan Khera, can I ask you humbly one thing? Can I ask you one thing, Mr. Pawan Khera? पद्मजा, मुझे अवसर मिलेगा एक? Okay, all right. Jeetu Patwari also wants to come in. हाँ बताइए. ऐसा है, 3 बातें हैं. देश में आज डिबेट क्या है? देश में डिबेट है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है. क्या कारण है कि लोग इतने बड़े, चलो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है, महाराष्ट्र में किसका है, तमिलनाडु में किसका है, गुजरात में किसका है. जगह जगह पूरे देश में ये बात किसानों की होने लगी कि आपने जो कहा था वो करो. आप क्यों नहीं, लोग रोड पे क्यों आ रहे हैं? क्यों रोड में पेट में रोटी नहीं है लोगों के? क्या कारण है कि बच्चे उनके पढ़ने जाते हैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं? और पूछते रहेंगे, पर हम आपसे भी सवाल पूछेंगे कि आपने पत्थरबाजी क्यों करवाई? ये सब मेरा आपत्ति आप पे भी है और मेरी आपत्ति प्रशासन. ऐसा है पद्मजा, मैं उनसे तो लड़ूंगा कोर्ट में, उनसे तो लड़ूंगा कोर्ट में, पर आपसे कहां लड़ने जाऊं मैं? आप अगर गलत रिपोर्टिंग करेंगे, मैं उनसे तो लड़ने जाऊंगा कोर्ट में. आप जिस तरीके
क्या है वीडियो में, क्या है वीडियो में? एक मैं कह रहा हूँ आप मुझसे पद्मजा मैं कह रहा हूँ पद्मजा मेरी बात पूरी एसडीएम ने आपको बोला आपने लोगों को भड़काया है। पद्मजा आप पे आरोप लगाता हूँ कि आपने मुझे कहा कि आप मुझे किसी लोगों ने कहा कि इंडिया टुडे पे बिना पैसे से कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। ये सच नहीं है, झूठ है, ये झूठ है। हाँ। पर ये बात अगर झूठे आरोप किसी पे कोई लगाता है उस पे क्या बीतती है? कोई बिना एविडेंस से ये बात करना, अगर आप इस तरीके वीडियो लेकर के आएंगे जहां पे मैं पैसा ले रही हूं और फिर आप उस पर आरोप लगाएंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। यही सवाल है कि एसडीएम ने मुझे ये कहा आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर एसडीएम क्यों बोल रहा है आपसे कि आपने लोगों को भड़काया। राइट है, मेरे को एसडीएम ने कहा कि आपने विधायक जी गारंटी ली थी पर ये वायलेंस हुआ, इसके लिए दोषी कौन? ये वर्डिंग विधायक जी नहीं, विधायक जी आपसे ये भी बोला एसडीएम ने कि आपने लोगों को भड़काया। हाँ ये बोला मैंने। अब उसने किस मंशा से बोला, क्यों बोला, मेरे को आरोप क्यों लगाया, इसके पीछे की भावना क्या, इसके इन सब बातों को आप पता नहीं लगाओगे। वायलेंस हुआ, वायलेंस क्या हुआ ये पता नहीं है। वायलेंस हुआ, वायलेंस आपने कहा एफआईआर है। मैं अभी इसी यहीं से आईजी को फोन करता हूं, टीवी लाइव रहेगा, अब भी आईजी को फोन करता हूं, मैं पूछता हूं क्या मेरे प्रति आपने तो आप कह रहे हैं कि भाजपा झूठ बोल रही है? बिल्कुल एफआईआर नहीं है। सैयद जफर इस्लाम आप झूठ बोल रहे हैं, एफआईआर तो है ही नहीं। ये तो साफ आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, एफआईआर का कोई ग्राउंड ही नहीं है। पद्मजा देखिए जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं और किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से थ्रेटन कर रहे हैं, ये तो उसका वक्त ही जवाब देगा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि फोन लगाना चाहता हूँ नहीं, 18 लोग कांग्रेस के लीडर, उनमें से जीतू पटवारी भी एक है जिन्होंने वायलेंस वहां पर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने चूंकि देखिए नहीं वो आपको चैलेंज दे रहे हैं कि वो अभी टीवी पे आईजी को फोन लगा करके आपको झूठा साबित करने के लिए तैयार है। On 4th of June the representative of farmers had met the honorable chief minister. They had a charter of demands. They did discuss with the chief minister. Most of them, not all, most of their demands have been accepted by the honorable chief minister. उसके बाद farmers का कोई प्लान नहीं था, लेकिन back union cannot be लेकिन उसके बाद आप देखिए। एक सेकंड सैयद जफर इस्लाम, can you please have silence for a second? We've got the IG on the line. He's speaking to जीतू पटवारी. Yes, पूछिए क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि नहीं हुई आपके खिलाफ, अभी बोला सैयद जफर इस्लाम फिर सुनो आप, शांति से सुनो आप पद्मजा। यही बात ये हमारे पे क्या बीतती है, हम सार्वजनिक जीवन जीते हैं, कैसे अपने आप को ढालते हैं। Sayyid Zafar Islam, he's got the IG of the police on the line and he says he's been told by the IG there is no FIR. It's a campaign of calumny that you are carrying out against him. Padmaja, I don't know who will verify who is speaking. नहीं उठाया। मेरा ये कहना है जफर इस्लाम साहब, आप दीन को मानने वाले व्यक्ति है, आप मेरी बात को सुने। आप मेरा एक व्यक्ति के सवाल कह रहा हूं जफर, एक मिनट जफर, आप पूरी बात होने दे। हम टेलीविजन डिबेट के पहले इंसान भी अच्छे हैं, वो भी जरूरी है, दीन का भी एक पार्ट है। मुझे ये बताएं कि क्या एक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन जीता है, पब्लिक में अपने राइट्स के साथ किसी की बात को मानने या बात बोलने के लिए अधिकारी नहीं है? क्या मैंने किसानों की मदद की या किसानों के पक्ष में बोला गुनाह कर दिया? अगर मेरे पे एफआईआर होनी, इसके पीछे का मेरा इतिहास अगर देखें तो एक भी एफआईआर मेरे या मेरे परिवार के प्रति ऐसी कोई किसी बात की नहीं हुई इतने सालों में। ये एक इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि अच्छा व्यक्ति है। अगर मैं 25,000 वोट से इंदौर, जहाँ सुमित्रा महाजन है, वहाँ से जीतता हूँ, तो क्या इसके पीछे लॉजिकली अच्छे इंसान को वोट देते हैं, पार्टी को नहीं? मैं कुछ बातें ये बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक डिबेट और राजनीतिकरण हो सकता है। मैं आप पे आरोप लगाऊं, आप मुझ पे लगाओ, पर व्यक्तिगत रूप से मैं इसका जवाब देना चाहता हूं जीतू पटवारी जी। ओके, जवाब दीजिए सैयद जफर इस्लाम। इनका अच्छा व्यक्तित्व, ये कह रहे हैं इनका रेप्यूटेशन है, भारी मतों से जीत के आए हैं, इसलिए आप उनके खिलाफ ये कैंपेन चला रहे हैं। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जवाब दे रहा हूं जीतू पटवारी जी को। आप बेशक बहुत भारी मत से जीत के आए होंगे, बेशक आपने अपने पुराने जीवन में, इससे पहले सार्वजनिक जीवन में आपने अच्छे काम किए, मैं उस पर कोई कॉन्टेस्ट, मैं उस पर कुछ आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। लेकिन उस दिन अगर आपने गलत काम किया है, उस दिन अगर आपने वायलेंस को बढ़ाया है, उत्तेजित किया क्राउड को, उत्तेजित किया किसानों को, तो उस दिन
से पहले आपने क्या किया, उसके लिए मैं ना तो उस पर कोई टिप्पणी करूंगा, ना मुझे करना चाहिए, लेकिन उस दिन के लिए आप जिम्मेदार हैं और उस दिन के लिए आपको उसके जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए कि आपने और आपके और भी लोग कांग्रेस के लीडर्स ने, आप देखिए, आपको खुद शर्म नहीं आ रहा है कि आप ऐसे वीडियो जिसमें एक महिला है कह रही है कि पुलिस चौकी को आग लगा दो। सईद, आप ये बताओ, आपने 6 लोगों को खड़े खड़े मार दिया, अभी 20 लोग हॉस्पिटल में हैं, आपकी सरकार ने, आपको शर्म आनी चाहिए, मुझे क्यों आएगी? 6 तारीख को ये एजिटेशन था, अगर उसमें आप लोगों ने मुझ पे ये बात की जिसकी हम डिबेट करते, 6 तारीख को 6 लोगों को खड़े खड़े गोली से भून दिया पुलिस ने, आपकी पुलिस ने, आपको शर्म आनी चाहिए कि मुझे आनी चाहिए? अच्छा, आप ये बताओ कि 20 लोग अभी भर्ती है, कल एक व्यक्ति को इतना मारा कि उसने आते आते दम तोड़ दिया इंदौर तक, आज एक हत्या हुई, इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए कि हमें आनी चाहिए? सरकार में आपने जो वादे किए सरकार लोगों के पूरे नहीं किए, इसके लिए लोग सड़क पे, इसमें आपको शर्म आनी चाहिए कि हमें आनी चाहिए? किसानों के नेता शर्म आपको आनी चाहिए जफर इस्लाम, शर्मिंदगी आपको महसूस होनी चाहिए, दूसरों पे आपके पाप धोल के आप बच नहीं सकते हो। आप किसानों के नेता किधर थे? किसानों के नेता तो मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, किसानों के नहीं, किसान संघ के नेता मिल रहे थे, उसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री दोषी है। मुख्यमंत्री ने किसान संघ के नेताओं से मिलकर किसानों की भावनाओं के साथ खेला, मैनिपुलेशन किया, राजनीति की, इससे ये हिंसा भड़की। अगर इसके लिए किसी को दोषी ठहराना चाहिए तो शिवराज सिंह चौहान को ठहराना चाहिए। उसके बाद पुलिस को सेल्फ डिफेंस, शिवराज सिंह चौहान ने हत्याएं जो उनकी सरकार ने कराई और ये वायलेंस फैला, इसके लिए सिर्फ शिवराज की करनी दोषी है। आप दोषी हैं, आप दोषी हैं, मौत के दोषी हैं, जिम्मेदार हैं आप और आपके कलीग कांग्रेस के। ओके, जस्ट अ सेकंड, अगर इस तरह की जफर इस्लाम, आप आपके पाप से छुप नहीं सकते हो, समय आएगा सही लोग सही दिशा में आपको इसकी सजा देंगे। All right. So the evidence is out there. If the BJP has the evidence, they say they have filed the cases, then let them proceed against these Congress leaders. I want to give you the final word, Pawan Khera. Do you at least promise that these videos, surely all of them cannot be doctored, you will internally investigate and take action against these people for what has been seen on TV? I spoke to Shakuntala Khattak myself and she admitted that she said, जला दो थाने को. She said, गुस्सा आ गया था मुझे क्योंकि मेरे ऊपर पानी फेंका, इसलिए मैंने बोल दिया, जला दो थाने को. इसमें मैं जवाब दूं? पवन जी, मैं जवाब दूं? We don't run parallel courts in this country as of now. So let the courts decide. If they are proven guilty, then law will take its course. We do not, for a minute, we are not confused about it. We do not want to shift our focus from the actual problems the farmers of this country are facing. We will continue fighting for them. We'll continue supporting them in their fight against this absolutely insensitive government that you have in the center and the states. And let them try and deter us. I'm sorry, we will not be deterred. Now, this gentleman Zafar Islam says, जीतू पटवारी कब से किसानों के नेता होगा? अब किसानों के नेता ही नहीं है तो किसानों को इंस्टिगेट कैसे कर रहे हैं? जीतते इलेक्शन आप हैं, इंस्टिगेट किसान हमसे होते हैं. No, this is such a hogwash these spokespersons are doing. I don't buy for a minute what they say. I don't trust their videos. I don't trust their accusations. पवन, मुझे लगता है मेरी एक और बात थी, जो शकुंतला खटीक है, अगर उन्होंने किसी प्रकार का, या मैंने भी, या कोई और भी व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में हिंसा की जगह नहीं है. जो भी लोग इस तरह की हरकत की, वो चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी समाज का हो, कानून के हिसाब से उसको दोषी होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए. ये कांग्रेस की लाइन है, ये मेरी लाइन है. ये जिस तरीके की मैनिपुलेशन होके डिबेट को भटकाया जा रहा है, आपको आज डिबेट होनी थी कि 6 लोग मरे क्यों, आप डिबेट कर रही, हिंसा क्यों फैली? मुझे अलग अलग बात समझ में नहीं आ रही. किसान क्यों रोड पे है? पूरे प्रदेश और देश में किसान क्यों रोड पे है? ये डिबेट होनी थी, वो डिबेट होनी है. आप डिबेट को डाइवर्ट करने का एक सोचा समझा साजिश. बिल्कुल नहीं पटवारी जी, 2 अलग अलग डिबेट है और ये दोनों डिबेट साथ साथ जारी रहेंगी. अगर उन्हें जवाब देना है कि किसानों की मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है, तो आपको जवाब देना है जफर इस्लाम से कि 6 लोगों को मारने वाला जीतू पटवारी जी, मैं आपको 3 घंटे का शो दिखाऊंगी जिसमें आपने लगातार सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी से, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए. बहरहाल आपने खुद बोला है कि अगर हिंसा को कोई भड़का रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए. The ball will now be in the court of the police. Thank you very much, gentlemen, and all the viewers for having joined us in the People's Court. Having heard all the sides, you take the final decision on who really is in the right.